So most of you, I think, will be familiar with what DevBay is, but those who are new, who don't know about DevBay, let me give you a quick introduction on what DevBay is. So yeah. So Deb is an open source community that we are building for the people, by the people, of course. It's an open source community. So everyone can share the knowledge and technology through Debbay via articles and blogs. So as everyone is welcome to write and read blogs, and the best thing about Debbay is it's completely free. Yes, it's free, no cost, nothing. You only get knowledge, you know. So Deb is an organization actually, which is hosted on GitHub. It is not just a platform; it's a complete organization which is hosted on GitHub, and all the projects that will come under Deb will be listed there itself. So you might be thinking, why not just simply create a WordPress blog, or simply publish an article on Medium or Geeks for Geeks? Those are great places, right? Why create a complete organization on GitHub? You know, so actually this was a thing which this is a basic flaw which I believe that all of these famous platforms have, like Geeks for Geeks and GitHub, is that you can read the article, and if you have any issues with it, you can just comment down below. But if you have more curiosity in the topic, and you want to discuss about the topic further with the blog writers and the community itself, you cannot do it. That's the end, right? So with Debbay, we actually are trying to rectify that problem by building a community. You know, so it's a basic the basic principle on which Debbay is currently working is going beyond the blog. So there's a community chat platform with resource sharing features, and users can read the free blogs and continue the discussion there. So that's the main point of Debbay, creating a community, so that actually तुम लोगों के पास तो काफी resources हैं, and कमांड प्रॉम्प्ट है, बट एक्चुअली इज अ प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म जो सबके लिए है, जैसे आउटसाइड आईआईटी मंडी लोगों के पास नहीं होता ना. सो दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं, उन लोगों के लिए है, सो दैट दे कैन आल्सो गेट द नॉलेज दैट वी आर गेटिंग. क्योंकि हम लोग तो कमांड प्रॉम्प्ट पे पूछ सकते हैं, बट दे डोंट हैव एनीवन टू आस्क. इसलिए सो दैट्स व्हाई Debbay, सो दिस इज समथिंग आई हैव स्टार्टेड. तो इसलिए, so this is the main basic. So I'll just discuss about in a minute about the members of Debbay. And so currently there are 6+ active members, and we have already published 10 articles. Or actually, thanks to blog writers, Lakshay is managing with me, Utkarsh, Palak, Shivam, Pranshu, Sahil, and Shreyas. Shreyas has a blog coming up real soon. So there are many contributors from first year itself, which I like to mention, especially Priyam. Priyam is one from first year. He's actually a star contributor of Debbay. He has already merged 5 pull requests, and actively working currently to merge more. And Pratiksha has already merged 1 PR and 1 active, and she's also working on currently on a very cool feature, so she'll be doing it soon. Also, you must have read the GraphQL introduction blog by Pranshu. So these I never expected कि first year वाले भी blog लिख देंगे यार, मतलब काफी knowledge है तुम लोगों को, that's why. So you can also be a part of it too. बस GitHub repository पे जाओ, there are many issues open, just simply उन पे जाके claim करो, and you can start working on it. So ये basic बस यही था Debbay के बारे में. So we'll not waste any time, we'll just directly jump into it. So Debbay Live. So what is this Debbay Live? So I already have the blog. So this live session, actually the point of the this live session was कि interaction हो जाए. And actually I'm also new to it, so मेरे को भी interact करके पता चल पाए कि what actually you guys are looking for, कि कैसे मैं easy बना सकता हूँ मतलब blogs वगैरह को. So that's the main aim of Debbay Live. So क्योंकि जैसे लक्ष्य वगैरह भी अभी काफी blogs लिख रहे हैं, तो they can take a live session, क्योंकि अभी सेमेस्टर तो स्टार्ट होने नहीं वाला काफी टाइम तक. सो सही रहेगा अगर क्या बोलते हैं यहाँ पे सेशंस ले पाए, तो इसलिए बस ये स्टार्ट किया था. सो आई होप विल लर्न समथिंग टुडे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट, you know.
So what is a command line interface? So basically there are many. So command line interface ये complex term लगती है, but we use it in day to day life, like basic commands like cd, ls. These are the basic command line tools. जब आप terminal खोलते हो, anything you run on it is a command line tool. ठीक है. सो जिन्होंने Node.js वगैरह यूज किया है, दे यूज npm command very often. npm stands for node package manager. So this is a command line tool. So you run your codes, python codes. So most of you are already familiar with python. तो तुम लोग codes वगैरह run करते हो python के, file बनाई, then you run python space mycode.py. So simply that will run the python code. So also you use git very often. तो गिट में भी यही होता है कि यू जस्ट रन द कमांड git push origin master. So what is the point of a command line interface? So they are just a way, another way of running your software. So usually in windows mostly we have used softwares ki we click on the icon and then a graphical user interface GUI opens up. हम वहां पे there are buttons listed, हम directly वहां click करते हैं and it in the backend it performs all the functions related to the buttons that we click. जो भी हम function buttons को click करके perform करते हैं, then background में वो अपने आप होता है. So if you want to use that software through terminal, for example, like developers like us mostly prefer terminal instead of opening a GUI. तो अब terminal का क्या सीन होता है कि mostly हम prefer करते हैं कि terminal पे ही use करें. So most of the organization और जो भी softwares होते हैं उनकी companies, what they do is they build a command line tool specifically for the developers, so that अगर if you want to save time, because loading a software takes time, right? कि सॉफ्टवेयर लोड होगा और ये होगा, तो फिर उसमें टाइम लगता है. बट कमांड लाइन टूल्स आर रियली फास्ट, क्योंकि इसमें जीयूआई नहीं होता. यू जस्ट डायरेक्टली run a command and then it performs a function on backend. So the point of CLI, they are not a program itself. They are a script which runs your program. So in order to build a CLI, you need to have a program. So in future, you might be having, you might build a Python library, which is really great. But or you might build a software which is really awesome, but you want developers. So if your software is developer oriented, for example, if we take Zulip, we have a command prompt organization on Zulip, right? Do you know that Zulip can be operated through terminal via the Zulip CLI? So that is a really great example, because Zulip is mostly used by developers itself, right? So if developers use कर रहे हैं, then we have to build a CLI for that, and they have build a CLI. So it's a great example of you need to have a software. So for example, in future, if you build a software, you just simply build a CLI for it, so that many and many developers can use it easily. So for the sake of this tutorial, I have actually built a very basic program. So in order to build a CLI, in order to tell you how to build a CLI, I need to have a program, right? So am I going at the right pace? Can someone, I'm not going too fast. Is everything understandable? Real well? Can anyone just comment for once so that I can know I'm not going too fast? अच्छा, थोड़ा फास्ट है. ओके. सो अभी तक एनीवन किसी को अगर कुछ, I'll repeat it just once कि जो CLI, जो as I've already told कि the point of building a CLI, why do we want to build a CLI? CLI is a command line interface. Command line is the commands that you run on terminal. जो जब भी हम terminal खोलते हैं and then we run any command on it, that is a command line interface. So the basic day-to-day command that we run, I've already mentioned, are Git and Python and npm. So the point of CLI is they are not a program in itself. They are just a way of running your another program or software. जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे GitHub, like Git is a software. If you use Git in Windows, there's a proper software for it. Whenever you open Git in Windows, then you'll see a GUI, complete graphics of the branches that you are making, and local branch or remote branch, everything will be seen as a in graphics, you know. So वहां पे if you want to change anything like push or make changes, you want to commit, make commits, then you can click on the software in the nodes. The nodes will be visible. So that's a GUI. But if you want to use Git through terminal, then you have to use the Git CLI.
the commands that you run, that git, push, origin, master, that will perform in the same way in the software that you do using the clicks and keyboard. So I hope everything is clear till now. There are a little, I'll just give a quick summary. एक दो लोग और आ गए. So we'll just stay, we have just started और हम CLI के बारे में बात कर रहे थे. So what is the point of building a CLI? CLI is a command line interface, which is a way of running, another way of running a software through terminal. So you can run softwares by using a GUI, and like have you I'll actually suggest you to install the Zulip CLI after this and use Zulip entirely, send messages to Zulip using your command line. So that'll be really helpful to you, so to understand CLIs better. So the whole point of CLI is they're just another way of running a software program. There's a separate app available for Git and npm too, but you can perform all the functions that you can do through GUI through terminal as well using the Git and npm CLI. So अब भी start करते हैं basic चीज. So अब for the sake of tutorial, as I've already said कि CLI as a standalone thing doesn't mean anything, क्योंकि CLI अपने आप में कुछ नहीं है. So you need a program, a software to build a CLI for it. So मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखा था, मतलब उसमें 10-20 लाइन का, जिसमें इट्स कॉल्ड काउंट CLI. काउंट CLI इज व्हाट इट डज इज कि आप टर्मिनल्स पे वी रन कमांड्स, राइट, लाइक sudo apt get install और ssh this. So ये बेसिक कमांड्स हम रन करते हैं. So I have wrote a program called command CLI. What it does is it counts the number of times you have actually ran that command. So for example, if you run that count CLI program and pass that count CLI sudo, so it will print how many times sudo has been you have used sudo in your terminal. So is it clear? So what count CLI does? I'll just यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? Is there anything that you guys are not understanding? Then if I'll explain. अगर एक को भी नहीं समझ आ रहा तो that's fine. आ रहा है आई थिंक, ठीक है. सो काउंट CLI बेसिकली क्या करता है, सिंपली इट काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स कि वो कमांड रन किया है. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव रन ssh ashish kumar@itmandi.ac.in, so if I've ran that command 20 or 25 times, then it will just simply print that after running count CLI ssh, it will print कि that count CLI has occurred 20 times. ठीक है. So we'll be building the count CLI like this, like you seeing on the screen, like count underscore CLI dash cmd, and then you will pass the command you want to count the print the count for. Like if I've run apt-get 194 times, so I'll just simply run count underscore CLI dash cmd apt-get, and then it will print command apt-get has occurred 194 times. Okay, so for this I'll just start with the tutorial now. Fine. I'll 1 second, just one more thing I need to do. So in order to, if you want to ask any questions, you can just simply there's a link visible in the presentation at the top. इस link को ना copy कर लो, and if you have any questions you can directly ask me any questions there, so I'll be able to see the questions directly if you ask any questions there. Chat में भी type कर दोगे तो ठीक है, but if you want you can type here as well. ठीक है. So I'll just shift the screen to my terminal. So for this tutorial, जो लोग अभी जो बस देख रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है, बट इफ यू वांट टू डू विद मी, अगर कोडिंग मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं जो लोग लैपटॉप पे हैं, दे कैन जस्ट सिंपली इंस्टॉल लाइब्रेरी. आई जस्ट शिफ्ट द स्क्रीन, जस्ट गिव मी 1 second. I'll just shift the window to my VS Code. So VS Code is visible. I hope it is. एक बार ही बता दो VS Code दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. Visible.
Any problem till now? जो लोग नए आए हैं, if anyone doesn't know what's going on, I'll just explain it quickly to you, and then we'll just jump to the code itself. Code is very easy. Actually, the session won't take much time. I think it will be done in nearly 20 minutes, I guess. It's actually very easy, that easy. So this thing, we'll be building a script. So CLI is a script. It's not a software in itself. It's a script. So today we'll be learning about scripts as well. So बस जल्दी बेसिक से मैं 2 मिनट में बता दूंगा. If there is anyone who still don't know what's going on, so before starting the coding, I'll just want to make sure that everyone is on the same page. Okay, just okay. I'll find then. I'll I'll start. Okay. I hope there's no one जिसे कोई idea नहीं है. आई थिंक द पेस इज फाइन टू. अगर फास्ट लग रहा है तो अभी भी बता दो, क्योंकि कोडिंग में तो वैसे ज्यादा फास्ट तो क्या ही होगा. विल बी एबल टू आंसर. आर यू एबल टू सी द कोड? आर यू एबल टू सी द कोड वेल कि जूम करना चाहिए? कि बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि बार बार ये प्रॉब्लम्स ना आए. फाइन. ठीक है. just make it a little. So I'll just want you to run the simple command pip3 install argparse. Those who are just coding with me, just simply run this command pip3 install argparse. So the library that we are using today for building the CLI is argparse. Argparse is argument parser. It's a simple tool that actually parses the argument that we pass in the command line itself. So I just want you to install argparse. Just quickly install pe laga do, and I'll just tell you. So I've created a file called count_CLI. You can in Linux just simply create a file called count_CLI. And यहाँ पे I'll just will be writing the entire code in Python. So I'll just make sure, just to make sure everything is working, I'll just print hello world. Python count_CLI. So it's printing hello world. So it's simple, right? So in order to, so this is a Python file, right? So I have just ran the script using Python command Python space count_CLI. So this is a Python file, right? What a script is. So in script, we actually run it directly. So command line mein, what we do is we generally simply write the command, right? You don't write Python space git, right? You just simply write git. So that is a script. So in order to convert this Python file to a script, we need something. So if we run this file directly using /count_CLI. So this is a command that is used to run scripts, right? You just simply write /, then name of the file. This is how scripts are ran, right? So इसमें if I Chirag bhai, you are late. Okay, I'll just explain. We have just started coding the CLI. तो अभी कुछ नहीं किया है, बस अभी बिल्कुल शुरू किया है. So simply अब यहाँ पे if I've ran the script using /count_CLI, it throws an error like exec format error. So if I directly run the script like this, the reason of the error is the actually compiler doesn't know which language to use. It doesn't know, right? I've written this in bash or in Python or whatever language. So in order to do that, you have to mention something called as an interpreter. So what is an interpreter? Just give me a second. Yeah. So I have added this line at the top. This user bin and Python 3. So after adding this line at the top, if I do this again, now the CLI is working, the script is working. So hash is used as a comment, right? So that the
top comment that we write using hash and then not, this is an interpreter. This is the location of the Python executor. So when I do /count CLI, it reads the first line and it automatically knows that I have to use this interpreter in order to run the entire script. For example, if I change this code to echo hello, and change the interpreter to bash. So this is a bash interpreter. One second. I actually forgot the location of the bash interpreter. Okay. Oh, it's directly bin bash, not user bin bash. If I set the interpreter to bash and I run this command, now it prints, right? So it knows that this syntax contain in the script, the code contained in the script, the syntax which is being followed is using bash. So simply you can write script in any language, like you can write in Ruby, Python, and you can write Git scripts as well. Just simply mention the location of the interpreter at the top and write the entire code. For example, you are using CLI, using command line, you need to run 20 commands of Git one by one, and you don't want to type it manually, like one by one. You can write all the commands one by one in a script and just simply write at the top, like execute it using bash, set the interpreter as bash, and then run the script. It will run all the 20 commands sequentially. You don't need to write anything again and again. It will just execute all the commands and they'll print the output to you. So how scripts work, is it clear at the moment? अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ. क्लियर है कि स्क्रिप्ट्स कैसे काम करती हैं? ये बेसिक चीज थी. अब इसके बाद सीधा बस CLI पे जंप करेंगे. दोबारा बताता हूँ, ठीक है? अब क्या सीन होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूँ, सो इन ऑर्डर टू, सो ये मान लो ये कमांड मैंने चलानी है, तो अगर ये कमांड चलानी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को लिखना पड़ेगा पाइथन स्पेस count_CLI, तो उससे ये फाइल चल जाएगी. And by mentioning Python in the command Python space count_CLI, मैंने बता दिया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को that you have to use Python interpreter to run this script, right? But अगर मुझे यही स्क्रिप्ट अगर मुझे इस स्क्रिप्ट की तरह रन करना है, like simply I have mentioned the command and then I do /count_CLI. This is the way scripts are run. अगर मैं ऐसे करूंगा देन इट थ्रोज एन एरर बिकॉज इट डजंट नो कि ये पाइथन का कोड है कि किसका कोड है इसमें, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे इसके लिए अगर स्क्रिप्ट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वी हैव टू मेंशन एन इंटरप्रेटर एट द टॉप. So this is the interpreter. If you write something called as hash not, so it automatically knows ki you have to, this is the location of the interpreter, and we are using Python 3 interpreter, user/bin/n. If you go into this folder, there will be a file named as Python 3. So wo Python 3 actually when you run Python 3 + count.cli, backend में यही वाली command run होती है, /user/bin/n space Python 3 space count.cli. So by writing this as interpreter, you already know. अब यहाँ से /count_CLI करूंगा ना, so it knows already कि I have to use the Python interpreter for this. ठीक है? तो अब इतना समझ आया कि how interpreters work. Simply अगर मैं यहाँ पे echo लिख देता हूँ ना, echo is the syntax of printing for bash. अगर मैं user bash कर दूंगा और यहाँ पे रन करूंगा तो it knows. Bin bash, sorry. It knows, run. It prints hello, right? तो अब scripts का क्या सीन होता है? I can write multiple commands together. Echo world a is equal to 1, print, echo a, and then a is equal to a plus 2, then echo a.
सो इतनी सारी कमांड्स हैं। अभी इफ आई रन दिस इन बैश, अगर मैं बैश टर्मिनल खोल के रन करूंगा ना, तो आई हैव टू रन दिस अगेन एंड अगेन, कि आई हैव टू रन राइट एवरी कमांड मैनुअली। बट अभी मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया और मैं रन करूंगा, सारी कमांड ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगी। सॉरी, echo the variable a, it's $a, I think. Yeah, the variables in bash are represented by the dollar. So yes, यहाँ अब समझ आ रहा है कि स्क्रिप्ट्स कैसे काम करती हैं। सिंपली अगर तुम्हें टर्मिनल में रन करनी है ना, जैसे बैश टर्मिनल ओपन किया, तुम्हें गिट की 20 कमांड या 30 कमांड्स रन करनी है, और यू डोंट वांट टू राइट them मैन्युअली ऑन द टर्मिनल इटसेल्फ, जस्ट सिंपली राइट दिस 20 कमांड्स वन बाय वन एंड मेंशन द इंटरप्रेटर एज बैश, और स्क्रिप्ट रन करोगे ना, देन यू विल जस्ट सी कि ऑटोमेटिकली वो सारी कमांड रन कर देगा। उसने हेलो प्रिंट किया, वर्ल्ड प्रिंट किया, देन ऑटोमेटिकली बैकएंड में ए की वैल्यू 1 सेट की, देन 1 प्रिंट किया, देन ए की वैल्यू 2 इंक्रीज करके ए प्रिंट किया। Oh, sorry, this is ये वो a+2 string हो जाता है। Fine, 1 is equal to 1 + 2 command not found. So I think this is the mathematics error. So you get the point, right? So ये basic चीजें हैं that that you need to know about this. अभी so अभी तो इसका समझ आ गया ना सीन। So what is it for? अभी भी समझ नहीं आया, so मैं थोड़ा सा और बता दूंगा। This is the basic outline of how scripts work. We'll just start the CLI। अगर आप समझ आ गए, just type in anyone। अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो, अभी कोई दिक्कत नहीं। एंड बिफोर, क्योंकि अब आर्क पार्स का कोड तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए आई वांट कि तुम्हें बेसिक समझ आ जाए बस स्क्रिप्ट्स का, क्योंकि स्क्रिप्ट आर यूज्ड वेरी ऑफन। मतलब सर्वर्स पे यही होता है कि यू जस्ट कैन नॉट लॉग इन टू अ सर्वर एंड राइट एवरीथिंग एनी टाइम। सर्वर्स पे ऐसी वी राइट ऑल द कमांड्स इन अ स्क्रिप्ट एंड वी जस्ट गिव अ कमांड दैट रन द स्क्रिप्ट, और सब कुछ हो जाता है। या फाइन, आ गया, ठीक है, चलो सही है। यूजर पेन एंड पाइथन, सो विल बी वर्किंग विद पाइथन 3 टुडे एंटायरली। सो यहाँ पे इंटरप्रेटर में पाइथन ही सेट कर देता हूँ, just make sure कि सही चल रहा है। So yeah, it's working. So I'll just paste the code, basic code of Arc CLI. There's nothing very. So अगर किसी को is anyone facing any error in running this command? अगर error आ भी रहा है ना, so actually ये script execute करने के लिए you need the execution permission for the file. So अगर किसी को permission errors आ रहे हैं ना, तो you can simply run this command chmod +x count_CLI .py। अगर किसी को परमिशन एरर्स आ रहे हैं, यू कैन जस्ट राइट सो chmod +x इज फॉर द एग्जीक्यूशन परमिशन। सो ये उस फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है, नथिंग एल्स। कि जैसे मैंने तो दे रखी है, तो इसलिए दैट्स व्हाई मेरे में कोई परमिशन एरर्स नहीं है, बट अगर किसी के में आ रहे हो तो वो हट जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे, हाँ, अब मैं बेसिक कोड यहाँ पे आर्क पार्स का प्रिंट कर दूंगा एंड आई जस्ट एक्सप्लेन यू द कोड। काफी इजी है, आर्क पार्स में ज्यादा मुश्किल चीज कुछ नहीं है। So simply I have imported ArcParse। Hopefully जो साथ के साथ कर रहे हैं, they have already installed ArcParse। तो I have just mentioned the firstly the interpreter, of course without the interpreter the script won't run on itself। तो उसके बाद I have just imported ArcParse and I have write a custom function simply, nothing special about this one। I have written the name of the function as custom। I have some arguments as called args, and I am just printing thank you for using count CLI utility in this one। And this is the syntax of the main function, and here is the main function where the basics of argparse are happening। So hopefully you all are able to see the code, right? तो यहाँ पे, हाँ, so the argparse library has a default the main class is argument parser class। So in this argument parser class you can see that I have passed something called as a description for this। So for example, if you run any command line tool, like if I use git, so if you want to if I run so by default most of the command line tools, what they do is they set a description for this। if you run command space -- help, so it'll just simply print the what that command does, right? Like if I run git -- help, so for your CLI
it is advisable to write the description. So yeah, like if I run git dash dash help, it shows that these are the arguments that you can pass in git, and this is what it does, the textual thing, that this command does this command does this is the entire description. So हमने हमारे count CLI के description क्या set किया है, this is count CLI command. So if I simply run count CLI space dash dash help, then it will simply print this is count CLI command. ठीक है. सो अब हमने क्या किया है, सो अब क्या है कि किसी भी आर्गुमेंट को रन करने के लिए दिस इज अ डिफॉल्ट फंक्शन दैट वी यूज. सो डिफॉल्ट फंक्शन अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे कस्टम सेट कर दिया है कि हमने पार्सर ऑब्जेक्ट बनाया लाइब्रेरी से, पार्सर डॉट सेट डिफॉल्ट्स फंक इज इक्वल टू कस्टम, कि डिफॉल्ट फंक्शन वी आर सेट इट टू कस्टम, ये वाला कस्टम फंक्शन इज द डिफॉल्ट फंक्शन. तो अगर हम जब भी काउंट CLI रन करेंगे ना, देन इट विल ऑटोमेटिकली रन द कस्टम फंक्शन. ठीक है. तो अभी मैं रन करके बताता हूँ क्या है. So this is basic simply args parse kiye, and then we have called the function args.func, which I have already set to custom function, right? तो अभी मैं ये वाला कोड रन करके दिखाता हूँ, ./count CLI. हाँ, so अब मैंने रन किया तो प्रिंट क्या हुआ, थैंक्स फॉर यूजिंग count CLI utility. So this is exactly what we told it to do, right? हमने डिस्क्रिप्शन सेट किया, दिस इज काउंट CLI कमांड, एंड वी सेट दैट द डिफॉल्ट फंक्शन विल बी कस्टम फंक्शन. अगर हम दैट इज इफ वी व्हेनेवर वी विल रन दिस काउंट CLI, इट विल ऑटोमेटिकली प्रिंट, it will automatically run the custom function which is simply printing thank you for using count CLI utility. और हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेट किया था दिस इज काउंट CLI कमांड. तो अगर मैं ./count CLI डैश डैश हेल्प करूंगा तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि ये वो प्रिंट करेगा यूसेज उसकी पूरी. सो दिस द यूसेज, या सो इट इज सिंपली सेइंग देयर इज करेंटली हमने कुछ किया नहीं है, सिंपली दिस इज द काउंट CLI कमांड इज द डिस्क्रिप्शन दैट वी हैव सेट. सो यहाँ तक समझ आ गया बेसिक काउंट CLI का कोड. अभी विल स्टार्ट एडिंग आर्ग्यूमेंट्स टू इट, और यहाँ पे लॉजिक ऐड करना शुरू करेंगे. जस्ट 10 to 15 more minutes, यहाँ से 10 to 15 more minutes लगेंगे एक्चुअली CLI पूरा बनाने में, सिंपली इसका. तो यहाँ तक आ गया समझ? एक दो लोग अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज मैसेज कर दो, अगर आ गया तो वो भी बता दो. ये बेसिक आर्टपार्स का कोड है, एंड देन फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स सिंपली कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल एक छोटा सा मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर ये किया है, और सिंपली एक कस्टम कमांड. तो दिस सेशन एक्चुअली वाज फोकस्ड ऑन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, तो मोस्टली फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वाले, अच्छा है यार सब आ गया. तो यहाँ तो बेसिक चीज समझ आ गई है. अब यहाँ पे बस आर्ग्यूमेंट्स ऐड करना शुरू करेंगे. सो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेनेवर वी build a command line tool, we in order to perform certain functions we need certain arguments. For example, अगर मुझे git में push function करना है perform, कि मुझे अपनी लोकल ब्रांच रिमोट ब्रांच पे पुश करनी है, तो मैं चलाता हूँ git push origin master. So push is the command line argument that I know that push function has to be performed, एंड देन उसके साथ मुझे उसके पैरामीटर्स देने पड़ते हैं कि आई वांट टू परफॉर्म अ पुश फंक्शन, एंड विद दैट आई वांट टू पुश टू द ओरिजिन द मास्टर ब्रांच. सो दैट्स व्हाई आई गेट पुश ओरिजिन मास्टर. आई जस्ट राइट इट हियर सो दैट इट get push origin master. So in order to perform a certain function, I'll repeat it once again. So in order to perform a certain function using in a software, you need to give a certain command, right? कि अगर मुझे push function perform करना है, then I'll pass the push command, and then with that it parameters कि origin पे push करो और master branch push करो. ठीक है. So in order to build a CLI, we have to mention these commands, right? that we need this and this argument for our CLI. तो हमारी CLI में क्या होगा? So count CLI क्या कर रही है? सिंपली ये कमांड ले रही है, फॉर एग्जांपल SSH या apt-get या sudo, will just pass that command in it, and वो ऑटोमेटिकली देख के बता देगा कि कितनी बार sudo, कितनी बार apt-get चला है. ठीक है. तो हमारी count CLI के लिए we just need one argument, right? So I'll just mention this argument as count CLI CMD. Okay, so just give me 1 second. कोड को अपडेट करो इसमें. So I haven't make any big changes. I have just simply added one more line.
सो इन ऑर्डर टू एड एन आर्ग्यूमेंट, तो अब हमें बताना पड़ेगा ना अपनी CLI को कि भाई इन ऑर्डर टू रन काउंट CLI args इज इक्वल टू arg parse डॉट parsers। हाँ, तो अभी क्या है, इस वाली आर्ग्यूमेंट में अनमोल ने पूछा है कि व्हाट डज दिस लाइन डज, args इज इक्वल टू parser डॉट parse अंडरस्कोर args। तो क्या है कि अभी तक हमने क्या किया था, I'll just go back once। अभी तक हमने क्या किया था कि सिंपली एक पार्सर मेन ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन पास किया था, उसके बाद डिफॉल्ट फंक्शन कस्टम को सेट कर दिया एंड दिस। अब क्या है कि जब हम रन करते हैं डॉट स्लैश काउंट CLI स्पेस समथिंग समथिंग ऐसे हम टाइप करेंगे, तो अब क्या होगा कि आर्ग पार्सर को पता होना चाहिए ना कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स पास हुई हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना काउंट CLI रन करता हूं तो मैं उसमें -cmd लिख के कमांड पास करूंगा कि सूडो है कि apt get है। तो अब क्या है कि आर्ग पार्स को पता करने के लिए एक पार्स आर्ग डिफॉल्ट फंक्शन उन्होंने बना रखा है जो क्या बोलते हैं, जस्ट सिंपली उस स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, राइट, डॉट स्लैश काउंट CLI स्पेस -cmd स्पेस सूडो। तो वो एक स्ट्रिंग पास की, तो अब स्ट्रिंग में से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो वो आर्ग्यूमेंट्स को पार्स करने के लिए उन्होंने एक डिफॉल्ट फंक्शन बनाया हुआ है और उस फंक्शन की जो वैल्यूज है ना वो हमने आर्ग्स में सेव करा ली है, सिंपल आर्ग्स नाम के वेरिएबल में, जो हमने यहाँ पे अपने फंक में पास कर दिया है। ये वाला जो फंक है कस्टम, ये कस्टम जो है ये हमने फंक को सेट किया हुआ है यहाँ पे, फंक इज इक्वल टू कस्टम, और आर्ग्स डॉट फंक यूज करते हैं तो उसमें हम आर्ग्स अपनी खुद पास कर देने। अभी मैं बताऊंगा आगे कि आर्ग्स को यूज कैसे करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये वाला समझ आ गई कि ये वाली लाइन क्या कर रही है अनमोल? अनमोल जस्ट टाइप आ गया, ओके फाइन। सो जैसा मैंने बोला कि वी नीड टू मेंशन सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन, राइट। तो हमारे केस में वी नीड अ कमांड, राइट, हमें एक कमांड चाहिए, कमांड का नाम चाहिए लाइक SSH या sudo या apt-get, जिसका हम कैलकुलेट कर सके कि वो एक्चुअल में कितनी बार चली हुई है, ठीक है। तो सिंपली एक पार्सर डॉट एड आर्ग्यूमेंट, ये एक लाइन ऐड की है जिसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पे पास किया है नाम, कि भाई उसका नाम क्या होगा, तो क्या बोलते हैं, जो पैरामीटर होगा, जो कमांड होगी उसका नाम। तो मैंने -cmd रखा है, तो एज आई टोल्ड यू कि हम डॉट स्लैश काउंट CLI काउंट अंडरस्कोर CLI -cmd cmd apt get ऐसे यूज करेंगे, ऐसे यूज करने वाले हैं। तो अब ऐसे यूज करने के लिए -cmd जो है हमें बताना पड़ेगा ना कि पहले -cmd होगा, उसके जस्ट इमीडिएट बाद उसकी वैल्यू होने वाली है। तो हमने जैसे यहाँ पे सिंपली बता दिया कि हमारी जो आर्गुमेंट है उसका नाम होगा -cmd, और उसका हेल्प वैल्यू, ये हेल्प वैल्यू जब हम काउंट CLI डैश हेल्प चलाएंगे ना तो वहां पे वो दिखाएगा, अभी मैं बताऊंगा क्या दिखाएगा। और डेस्टिनेशन वेरिएबल इज द नेम ऑफ द वेरिएबल इन विच द वैल्यू ऑफ कमांड विल बी सेव्ड। सो इफ अगर यहाँ पे मैं args.cmd यूज करूंगा ना तब वो वैल्यू प्रिंट कर देगा विच इज apt-get, ठीक है। और इसका वेरिएबल टाइप बताना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि कमांड्स हमारी इंटीजर भी हो सकती हैं, फ्लोट भी हो सकती हैं, बट हमारा क्या है कि वी आर टेकिंग अ स्ट्रिंग, sudo apt-get, these are strings, right। तो हमें बस वेरिएबल टाइप एंड वी हैव सेट द रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू। अगर मैं ये कमांड पास नहीं करूंगा ना तो नाउ इट विल नॉट रन। तो मैं बस ये वाला कोड चला के दिखाता हूँ बेसिक। मैं सिंपली डॉट स्लैश काउंट CLI रन किया, so it throws an error, count CLI error, the following arguments are required -cmd। so अभी जैसे मैंने बताया कि required true कर रखा था, that's why ये चल नहीं रहा है। तो सिंपली डॉट स्लैश, ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा सेशन? अगर स्लो लग रहा है तो बता दो, मैं थोड़ा पेस अप कर दूंगा। फास्ट लग रहा है तो भी बता दो, क्योंकि बस अब ये ज्यादा बचा नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत ही है मेन चीज इसमें। थोड़ा स्लो है तो बता दो, मैं ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। हाँ ठीक है। सो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर मैं CMD पास नहीं करूंगा ना तो ये चलेगा नहीं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू सेट कर दिया, तो डॉट स्लैश काउंट अंडरस्कोर CLI, अभी मैंने जैसे सिंपल बिना CMD के चलाया तो वो एरर थ्रो कर रहा है, बट अगर मैं CMD के साथ चलाऊंगा, मैं कुछ भी पास कर देता हूँ, ऐसे पास कर देता हूँ, तो अब चल गया, ठीक है फाइन। क्योंकि अभी हमने फंक्शन में कुछ परफॉर्म नहीं किया है, अभी भी हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं थैंक्स फॉर यूजिंग काउंट CLI यूटिलिटी, मतलब अब ये चल रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हमने हेल्प सेट किया है दिस, इसकी हेल्प वैल्यू क्या है, द कमांड हुज काउंट नीड्स टू बी प्रिंटेड। तो मैंने बताया था कि डॉट स्लैश काउंट CLI डैश डैश हेल्प चलाऊंगा,
तो यहाँ पे आ जाएगा दिस द काउंट CLI कमांड। ये हमने ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे सेट किया हुआ था वो है। एंड देन उसके बाद ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स इज दिस डैश CMD और उसकी हेल्प वैल्यू यहाँ पे आएगी द कमांड हुज काउंट नीड्स टू बी प्रिंटेड। ठीक है, ये समझ आ गया? क्योंकि जब हेल्प हम चलाते हैं देन उसमें हमें पता चलना चाहिए ना कि काउंट CLI काम कैसे करती है, क्या क्या आर्गुमेंट्स मुझे उसमें पास करने हैं। तो इसमें सिंपली डैश CMD हमें यूज करना था और उसके अंदर हमें पास करनी थी वैल्यू जो हमें प्रिंट करनी थी, जिसका काउंट हमें प्रिंट करना था। सो आई हैव जस्ट सिंपली ran the help command and then here I see dash CMD space the CMD value and the description for it is the command whose count needs to be printed. So यहाँ तक समझ आ गया? So now we'll try just we are actually almost done, क्योंकि ऐसे ही I can add multiple arguments, कुछ ऑप्शनल भी हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल इन गेट what we do is, as I already told you, git push origin master, right? If you just write git push and don't give कि कहाँ push करना है, क्या push करना है, then it will throw an error, right? तो अब for a command you need a value, particular value. So इसमें वही किया है हमने कि we have set the required equal to true. In order to run count CLI you need to have the command, you need to pass the command value. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सिंपली लॉजिक बिल्ड करना शुरू करेंगे इसका, जो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मतलब तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो बहुत इजी है। ठीक है, अब जैसे वी आर जस्ट पासिंग द कमांड वैल्यू, सो इन ऑर्डर टू see the value, so we'll just print it here, argument value plus args.cmd. So I have set the destination equal to CMD. इसका क्या मतलब है? द वेरिएबल इफ आई यूज args.cmd देन उसकी वैल्यू CMD नाम के वेरिएबल में होगी। अगर मैं यहाँ पे CMD2 कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे args.cmd2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस वो वेरिएबल का नाम के लिए होता है, डेस्टिनेशन की कौन से डेस्टिनेशन वेरिएबल में होगा। तो मैं यहाँ पे ./count.cli डैश CMD सूडो करता हूँ रन, तो यहाँ पे आर्गुमेंट वैल्यू सूडो प्रिंट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे SSH करता हूँ तो यहाँ पे आर्गुमेंट वैल्यू SSH प्रिंट हो जाती है। सो args.cmd इज द वे विल यूज द आर्गुमेंट दैट वी हैव फाउंड। तो अभी बस वी आर जस्ट डन ऑलमोस्ट। यहाँ पे अब क्या होगा कि अभी तो ये तो काउंट CLI है, बट हम सीक CLI बनाना किस लिए रहे हैं? ताकि हम अपने कस्टम सॉफ्टवेयर इन फ्यूचर, तुम कोई सॉफ्टवेयर बनाओ या पैकेज बनाओ जिसके लिए तुम्हें CLI की जरूरत है, तो वो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लॉजिक। ठीक है, तो बस अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल तुमने कोई सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो मैंने जुलिप बनाया है, जुलिप की CLI बना रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जुलिप के पैकेजेस API वाले इंपोर्ट करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इस फंक्शन के अंदर मैं बस इफ एल्स केस लगा दूंगा। इफ आर्गुमेंट डॉट मेरी argument is this is like send message, and then I'll just simply call the functions to send a message here. यहाँ पे code for your software API, यहाँ पे तुम सारी कॉल्स करोगे। यहाँ पे इतना समझ आ गया बेसिक की, अब तुम्हें बेसिक पता ही चल गया होगा आर्ग पार्स काम कैसे करता है। अभी यहाँ पे बचा क्या है? बचा सिर्फ इतना सा लॉजिक है, वो वाला क्या बोलते हैं अपना काउंट करने वाला CLI, वो हमारी चीज है। बट लेकिन इन जनरल आर्ग पार्स इतना सा ही है कि यहाँ पे बस तुम क्या बोलते हैं अपना सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करो और सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके जो जो फंक्शंस कॉल करने हैं वो यहाँ पे करो और args.cmd मैनिपुलेट करो। अब मैं यहाँ पे सिंपली जल्दी से अपना उसका लॉजिक लिख देता हूँ। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। होपफुली यू कैन सी, कोड दिख रहा है सारा। मैंने बस कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपल एक कस्टम फंक्शन को मॉडिफाई किया। विजिबल है कोड क्लियरली? मेरे को बता दो एक बार अगर नहीं विजिबल है तो। ठीक है, तो बस मैंने कस्टम फंक्शन मॉडिफाई किया। अभी तक मैंने क्या किया था, सिंपली अब मैंने तुम्हें बताया था कि बस काउंट CLI क्या करता है। वो सिंपली क्या करता है
कि तुम कमांड पास कर दो और उसमें इट विल कैलकुलेट द अमाउंट नंबर ऑफ टाइम्स द कमांड हैज बीन रन इन टर्मिनल। तो अभी क्या होता है टर्मिनल में, व्हेनेवर यू रन अ कमांड देयर इज अ फाइल कॉल्ड bash_history विच इज इन योर होम। तो वहां पे ना वो फाइल सेव होती है, उस फाइल के अंदर देयर इज मैं तुम्हें दिखाता हूँ बैश हिस्ट्री फाइल, दिस द बैश हिस्ट्री फाइल। सो दिस इज ऑल द कमांड व्हिच आई हैव एवर रन, मतलब एवर रन नहीं, इट सेव्स लास्ट 1000 कमांड्स। तो आखिरी 1000 कमांड्स में कितनी बार मैंने चलाया, 1000 और 2000, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर। सो दिस इज द बैश हिस्ट्री फाइल। तो क्या होता है कि टर्मिनल में जब भी तुम कोई कमांड रन करते हो ना, तो बैश हिस्ट्री में वो सारा सेव हो जाता है, ठीक है। अगर तुम टर्मिनल में हिस्ट्री टाइप करते हो ना, हिस्ट्री, तो वो सिंपली प्रिंट कर देता है वो फाइल की जो जो तुमने कमांड अभी तक रन की है। देखो हमने क्या क्या इतनी सारी कमांड रन की है ना, ये कहाँ गया, तो ये सारा वो प्रिंट कर देगा, ये अभी तक मैंने जितनी भी कमांड्स रन की है, लास्ट 20 और पता नहीं कितने 1000, आई डोंट एग्जैक्टली नो द नंबर। तो मैं फिश यूज करता हूँ, बट मैं तुम्हें बैश का बता रहा हूँ बिकॉज मोस्टली यू विल बी यूजिंग बैश। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस फाइल को रीड करेंगे और क्या बोलते हैं, जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सूडो पास किया है, तो जिस जिस लाइन के अंदर सूडो आएगा विल जस्ट इंक्रीज द काउंट बाय 1। सिंपली ये लॉजिक है। ये यहाँ तक मैंने हिस्ट्री वाली फाइल मैंने काउंट 0 सेट किया, यहाँ पे बस वो कमांड प्रिंट की, मैंने यहाँ पे काउंट 0 सेट किया, इनिशियल काउंट, और हमने हिस्ट्री फाइल रीड की यहाँ पे, बैश हिस्ट्री फाइल, और उस हिस्ट्री फाइल में इटरेट किया लाइन बाय लाइन। एंड if you have a new line, just simply यहाँ पे चेक किया कि अगर वैल्यूज, यहाँ पे ये लॉजिक मैं बताता हूँ क्या है कि apt-get में सूडो के साथ भी और बिना सूडो के भी रन कर सकता हूँ। एंड इफ आई एम फाइंडिंग apt-get कितनी बार आया है, तो मुझे उसमें वो वाले भी इंक्लूड करने पड़ेंगे जो सूडो apt-get है। तो सिंपली उसका लॉजिक है ये। तो जहां भी मुझे वो उस लाइन में जहां भी मुझे मिलेगा, जैसे सूडो जितनी बार भी आएगा, सिंपली काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, काउंट इंक्रीज करके, एंड आई हैव जस्ट सिंपली प्रिंटेड द कमांड, लाइक प्रिंट कमांड डैश args.cmd, कमांड का नाम हैज अकर्ड काउंट टाइम्स, ठीक है। सिंपली फाइल क्लोज की और सिंपली ये किया, और मैं ये चला के दिखाता हूँ, /count_cli -cmd ssh। फॉर एग्जांपल ssh मैंने कितनी बार रन किया, मैंने रन किया ssh एज अकर्ड 0 टाइम्स, क्योंकि मैंने ssh यूज ही नहीं किया। तो अगर मैं sudo चेक करता हूँ, एंटर, तो sudo मैंने 50 बार रन किया होगा फाइल में ऑलमोस्ट, तो दैट्स व्हाई sudo का काउंट आ गया। सबसे पहले हमने क्या प्रिंट किया था, कमांड का नाम कि cmd डैश वो, तो सबसे पहले sudo प्रिंट हो गया, उसके बाद कमांड, उसके बाद पूरा लॉजिक जो सिंपल सा है, फाइल को इटरेट करो और जब भी काउंट आए प्लस प्लस कर दो, बेसिक सा, and then we'll just printing that this command has occurred this much times. तो command dash sudo has occurred 50 times and मैं thanks for using count_cli utility. This was very basic thing. अगर ये तुम्हें नहीं समझ आया तो अभी भी बता दो, कमेंट कर दो, क्योंकि we are done actually. तो बिकॉज क्योंकि count_cli एज आई ऑलरेडी मेंशन कि काउंट जो CLIs हैं, जो कमांड लाइन इंटरफेस है, वो यूज होते हैं किसी सॉफ्टवेयर का CLI बिल्ड करने के लिए। सो आई डिडंट हैव अ सॉफ्टवेयर, सो आई बिल्ट अ सिंपल प्रोग्राम जिसके ऊपर मैं तुम्हें CLI बनाना सिखा सकूं, जो इसलिए मैंने count_cli बेसिक सा एक 10 लाइन का प्रोग्राम बनाया। और so this is the place where your magic has to happen. So for example, if you build a software or anything like that in future, you can just simply write your you can just import your software in the Python code and just simply call those functions. Like for example, if you are building a CLI for a messenger and there is a send message function, receive message function, or delete message function, whatever, you can just simply check if args.cmd equal to send message, and then does directly simply call the send message function and उसमें message value pass कर दो and it will perform the function. यहाँ तक basic समझ आ गया तुम्हें? दिस वॉज ऑल अबाउट CLI। अब क्या है कि अभी हमें इस CLI को बस CLI तक का पार्ट यही तक था, वी हैव बिल्ड अ CLI। बट क्या होता है कि CLI हम ग्लोबली रन करते हैं, राइट। अभी मुझे CLI चलाना है तो मैं $count_cli-cmd sudo करूंगा, तब चलेगा ये। बट अगर मैं count_cli क्योंकि गिट जो होता है, तुम किसी डायरेक्टरी में जाके ./git तो नहीं करते हो, तुम डायरेक्टली गिट करते हो। तो अब इसको तुम्हें अगर ग्लोबल बनाना है,
तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज होती है कि जो तुम्हारे उबंटू में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ना, वो यूजर स्लैश बिन फोल्डर में होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब भी मैं गिट स्पेस पुश ओरिजिन मास्टर टाइप करता हूं ना कमांड लाइन में, तो वो ऑटोमेटिकली स्लैश यूजर स्लैश बिन में देखता है जहां पे गिट है, और उसके साथ में आर्ग्यूमेंट्स पास कर देता है। पर हमारा काउंट CLI क्या है, वो तो एक लाइब्रेरी में है, सॉरी फोल्डर में है, जो कि यूजर बिन में नहीं है। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, इसको कॉपी करना है अपने ./count_CLI, इस काउंट CLI को यूजर बिन में कॉपी कर देना, क्योंकि मैंने कर रखा है। दैट्स वाई अगर मैं काउंट CLI डायरेक्टली चलाऊंगा ना -cmd sudo, तो वो प्रिंट कर देगा, मेरे को डॉट / लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं टर्मिनल कितनी भी बार कहीं भी खोलूंगा, मैं सीधा काउंट CLI -cmd स्पेस sudo या स्पेस ssh करूंगा, तो वो डायरेक्टली रन कर देगा। sudo ssh apt whatever जो भी होगा, मैंने 50 बार ऐप रन किया तो वो ऐप आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक अबाउट CLI। तो आई होप समझ आया होगा तुम्हें। अभी अभी भी किसी को नहीं आया तो आई थिंक बता दो। अभी इसमें कोई लाइन ऐसी है जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आई हो? एनीवन? आगे है क्या समझ? यार वन वे इंटरेक्शन, that's a problem. I cannot interact, it's like a one way communication. So if अगर तुम्हें समझ आ गया, so you can write as well. So this was the basic, all of the basics about 50 से 1000 कैन हो गया। So हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, अभी किसने पूछना है तो पूछ लो। हाँ बता लो। सॉरी, who's this? हाँ सर, नाम? पीयूष कह रहा हूँ, पीयूष बोल हाँ रहा हूँ। पीयूष, हाँ बोल बोल बोल। हाँ सर, जैसे मान लो अगर जो मेरा आर्ग्यूमेंट है उसके हाँ हाँ बीच में अगर मेरे स्पेस है, हाँ हाँ। तो मतलब वो उसको एज अ होल एंटिटी लेता है या फिर मतलब वो सिर्फ पहला वर्ड उठाएगा? आर्ग्यूमेंट में स्पेस नहीं हो सकता यार, क्योंकि तूने कभी नहीं देखा होगा ऐसे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग टू पार्स कर रहा है ना, कि ये तो वेरिएबल और वैल्यू, वेरिएबल और वैल्यू। तूने -cmd लिखा, क्योंकि तू गिट में भी देखेगा किसी भी CLI में तो स्पेस नहीं मिलेगा। स्पेस का मतलब यू आर शिफ्टिंग टू अ डिफरेंट एंटिटी, कि तू दूसरी कमांड पे जा रहा है अगर स्पेस लगा रहा है तो। वरना तुझे वैल्यू अगर स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग करना है, व्हाट यू कैन डू इज कि डबल कोट्स के अंदर उसको लिख सकते हैं अगर स्पेस है तो। बट अदरवाइज यू कैन नॉट सेट अ कमांड एज, जैसे यहाँ पे CMD है, तो अब -cmd हमने जो रखा है पैरामीटर हमारा ./count_CLI -cmd, जो -cmd है ना, मैं उसमें स्पेस नहीं रख सकता। -cmd स्पेस दिस, ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू में स्पेस हो सकता है, बट लेकिन इसकी जो कमांड है उसमें स्पेस नहीं हो सकता। ओके सर, मतलब मैं सर वही पूछना चाह रहा था, जैसे वैल्यू है ना, अगर मान लो हमारी है हाँ, वैल्यू में पुश, स्पेस हो सकता है, क्योंकि वैल्यू पूरी एक स्ट्रिंग हो सकती है, तो तू उसे डबल कोट्स में डाल के स्पेस लगा कुछ भी, क्योंकि वैल्यू में हो सकता है कि मैं CMD में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहूँ, कि मैं हेलो वर्ल्ड पास करूँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, तो मैं काउंट CLI -cmd डबल कोट्स में हेलो स्पेस वर्ल्ड ऐसे लिख दूंगा, एंड देन वो एज अ स्ट्रिंग ले लेगा पूरे को, वो पूरे डबल कोट्स को इंक्लूड कर लेगा, ऐसा। सही है सर, समझ गया। हाँ ठीक है। और हाँ, आवाज एको कर रही है भाई, एक बार दोबारा। जैसे गेट यूजर नेम वगैरह में डबल कोट्स में डालना पड़ता है अगर स्पेस वगैरह होता है। हाँ हाँ, स्पेस है तो डबल कोट्स में, क्योंकि डबल कोट्स में क्या होता है, वो एक ही चीज बन जाती है पूरी, वो डबल कोट्स के अंदर जो भी होगा उसको एक ही चीज मानेगा वो, तो इसलिए डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, क्योंकि स्पेस डालने का मतलब है यू आर मूविंग टू अनदर थिंग। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे में अभी तो ऐसे CMD एक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे गिट में 2-3 चीजें होती है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, उसमें हमें बताना पड़ता है कि कहां पुश करना है और कौन सी ब्रांच पुश करनी है। सो ओरिजिन इज वेयर आई वांट टू पुश एंड मास्टर इज द ब्रांच आई वांट टू पुश, तो उसमें जो स्पेस है वो दो अलग अलग चीजें हैं। तो स्पेस लगाने का मतलब है देयर आर टू सेपरेट थिंग्स, वो एक चीज नहीं है। तो इसलिए स्पेस का मतलब इफ यू वांट टू ऐड अ स्पेस देन यू हैव टू इंक्लूड इट इन डबल कोट्स, वो ऐसे अकेले नहीं आएगा। सर जैसे उस कमांड में जैसे गेट गेट पुश ओरिजिन मास्टर है, तो हाँ, मतलब हम कोई फ्लैग तो स्पेसिफाई कर नहीं रहे। फ्लैग है ना, वो उसमें जो पुश है वो फ्लैग ही है, कि तूने गिट दिया
और तूने पुश लिख दिया, देन पुश के बाद जो वैल्यूज आएंगे ना वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे पुश के बाद उससे दो वैल्यूज कंपलसरी चाहिए होती हैं कि कहां पुश करना है और एंड विच ब्रांच यू वांट टू पुश, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है कि भाई ये दो चीजें जो है पुश के बाद आएंगी। अगर तू पुश के बाद लिख देगा ना कमिट, तो वो एरर देगा तेरे को सीधा कि भाई यू कैन नॉट राइट कमिट आफ्टर पुश, आफ्टर पुश यू नीड टू राइट वेयर टू पुश एंड व्हाट टू पुश। तो पुश इज द की हेयर। यहाँ पे हमने यहाँ पे देख इस लाइन में यहाँ पे डैश सीएमडी जो लिखा है, ये आर्गुमेंट ऐड किया मैंने, डैश सीएमडी आर्गुमेंट ये फ्लैग ऐड किया है। ये अगर मैं इसे सीएमडी कर दूंगा तो सिंपल सीएमडी हो जाएगा वो। यहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा, आर्गुमेंट में यहाँ पे पुश लिखा होगा कि पुश इज द आर्गुमेंट विच आई वांट, उसके बाद वैल्यू। समझा? हाँ सर। हाँ, तो बस यही बेसिक है। और बाकी लोग किसी का कोई भी डाउट? एनीवन? मेहुल, हाँ अनमोल मैं अब इसमें जैसे सूडो का काउंट 50 से 1000 कैसे हो गया विद इन 1 लाइन। सो दिस कैन बी एक्चुअली क्या होता है कि ये दिस डिपेंड्स विच शेल यू आर यूजिंग। फॉर एग्जांपल यू माइट बी यूजिंग बेसिक बैश शेल। तो अब क्या होता है, इफ यू आर ओपनिंग अ टर्मिनल, सो दैट फाइल हैज ऑलरेडी बीन लॉग्ड, कि टर्मिनल खोला देन फाइल वो लॉग्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग एनी कमांड, तो वो बैश हिस्ट्री जो है वो रियल टाइम में अपडेट हो रही है, इट इज लॉग्ड। तो अब क्या मेरे में क्या है कि मैंने इतनी बार चलाया है उसे पहले ही, तो वो कैश हो चुकी है फाइल, तो वो उसी कंटेंट में से बार बार फेच कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सूडो दोबारा भी चला दूंगा ना, सूडो apt get अपडेट, एंड देन उसके बाद मैं काउंट सूडो का चेक करूंगा, तो वो सेम काउंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। बिकॉज क्योंकि वो जो फाइल है जो रियल टाइम में चेंज हो रही है वो लॉग्ड हो चुकी है, और जो कंटेंट जिसमें से मैं पार्स कर रहा हूँ वो कंटेंट जो है वो फेच हो चुका है, वो कैश हो चुका है, बेसिकली ऐसा सीन है। फिर मेहुल ग्लोबल बनाने के लिए, हाँ, स्लैश यूजर स्लैश बिन खोलोगे ना जब तुम, उसमें जो भी तुम जब भी sudo apt get इंस्टॉल करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली स्लैश यूजर स्लैश बिन में जाता है। इसलिए तुम कमांड लाइन से कुछ भी चलाते हो डायरेक्टली चल जाता है, उसमें कोई कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि स्लैश यूजर स्लैश बिन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पाथ में एडेड होता है। तो एक पाथ करके वेरिएबल होता है, एको डॉलर पाथ, कैपिटल्स में पाथ लिखोगे ना, यहाँ पे सारे पाथ जो होते हैं जो बाय डिफॉल्ट एडेड होते हैं। तो इसमें यूजर बिन, यूजर शेयर बिन, यूजर लोकल बिन और स्लैश यूजर स्लैश बिन, ये सारे इसमें, ये रहा स्लैश यूजर स्लैश बिन जो होता है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट एडेड होता है, ठीक है। तो इसलिए जब तुम काउंट उसे कॉपी करने के बाद काउंट CLI लिखते हो ना, तो वो ऑलरेडी उसमें एडेड होता है, तो इसलिए तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए दिव्यशील इज आस्किंग कि फ्लैग के लिए डैश या डबल डैश, नहीं कोई जरूरी नहीं है। जैसे गेट एज यू कैन सी कि गेट पुश ओरिजिन मास्टर, उसमें डैश नहीं लगाया उन लोगों ने, वो अपनी चॉइस है कि मतलब डैश से ये हो जाता है ना, यू जस्ट इट्स नोमेनक्लेचर बेसिकली, कि डैश CMD लगाने से यू आर एक्चुअली मैन्युअली मेंशनिंग दैट दिस इज द फ्लैग नेम, कि डैश CMD इज अ फ्लैग नेम एंड उसके बाद SSH इज द वैल्यू। So SSH का CLI से लेना देना नहीं है, SSH is an argument that we pass. Double dash and dash are optional things, but this it is used, it is advised to use them to just to differentiate between the value and the variable. बस आई होप दिव्यशील, मेहुल, अनमोल, एक फ्लैग्स में सब फ्लैग एक्चुअली सब फॉर अभी के लिए वैसे मैंने सब फ्लैग्स आई डोंट थिंक कि सब फ्लैग्स होते हैं, बट आई थिंक होते होंगे, बिकॉज मैंने आज तक वैसे CLI को यूज नहीं की जिसमें हो, बिकॉज यू आर जस्ट मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स, मच मोर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अब क्या होगा कि उसमें अगर सब फ्लैग्स बनाए देन क्या, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट मेरे कभी माइंड में आया नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई CLI होती है कि यू हैव सब फ्लैग्स इन इट, बिकॉज इट मेक्स इट मोर कॉम्प्लेक्स। बट आई नीड टू चेक कि argparse supports it or not. अगर ऐसा होता है, so obviously argparse will be supporting it, but I'm actually I don't know because I haven't used it, but this is a good question. You can actually look it up and maybe let us know later कि ये होता है कि नहीं होता, but डिस्कॉर्ड पे होते हैं, सो मे बी, हाँ अगर डिस्कॉर्ड पे होते हैं तो आई थिंक होता होगा, बट आई एक्चुअली डोंट नो कि argparse में कैसे यूज करना है। सो अगर होता है तो ऑब्वियसली argparse में होता होगा,
बट यू जस्ट नीड टू लुक अप द सिंटैक्स. अब बेसिक चीज तुम्हें पता ही लगी है. यू जस्ट नीड टू गूगल हाउ टू ऐड नेस्टेड फ्लैग्स इन आर्कपार्स. वो वहां पे आर्कपार्स डॉक्यूमेंटेशन खोल के यू कैन लुक इट अप और सब पता चल जाएगा उसमें कि क्या क्या है. एंड ऑल्सो डिविशियल फाइंड में यूज होते हैं. अच्छा हाँ हाँ. सो लाइक हाँ ठीक है, जैसे फाइंड में यूज होते हैं, मैंने यूज नहीं किया, सो इट्स माय मिस्टेक. बट यू कैन लुक इट अप डायरेक्टली ऑन आर्कपार्स डॉक्यूमेंटेशन. आई थिंक देयर विल बी एवरीथिंग available on ArcParse documentation. So this is a basic thing which I advise ki instead of directly going to the Stack Overflow and other websites, like directly googling the solution, you should learn how to read the documentation itself. क्योंकि in future क्या होगा कि you'll be in industries, you won't there'll be software जो तुम्हारी इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर है, and you won't find answers for it online or on Stack Overflow. So you have to look through the documentation. तो documentation पढ़ना आना चाहिए, तो उसकी आदत डालोगे so it will be really great. क्योंकि जब जैसे सॉफ्टवेयर्स कुछ होते हैं जो कंपनी स्पेसिफिक, क्योंकि इंडस्ट्री में देयर आर मोस्टली यू विल बी वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर जो तुम फर्स्ट टाइम बना रहे हो या तुम्हारी कंपनी के पास ही है. यू वोंट फाइंड आंसर रिलेटेड टू दैट सॉफ्टवेयर ऑन इंटरनेट. तो तुम्हें उसकी डॉक्यूमेंटेशन वो लोग देंगे कि दिस द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सॉफ्टवेयर एंड ये बग सही करो. सो यू नीड टू लर्न हाउ टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन. तो व्हाट आई प्रेफर इज कि अगर कोई भी एरर्स आते हैं ना, तो सिंपली डॉक्यूमेंटेशन खोलो एंड देन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो कि व्हाट इज दिस फंक्शन अबाउट, कि अगर ये एरर आ रहा है तो इस फंक्शन में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, सो ये फंक्शन कर क्या रहा है, तुम्हें बेसिक पता होनी चाहिए. तो इससे बस तुम्हारा ये होता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और बढ़ जाती है, बग्स कम आते हैं जब तुम कोड लिखते हो. तो या एनीथिंग एल्स, कुछ भी और डिस्कस करना हो किसी को? होपफुली मैंने डाउट्स, जिसने डाउट्स पूछे हैं एक बार टाइप कर दो इफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट आई सेड. मेहुल, दिव्यशील, अनमोल, पारस, एक बार ही बता दो इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स, और तुम्हारे डाउट्स में अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, इफ यू हैव एनीथिंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग regarding this code as well, I can just simply go through it again once more. As I already told you, 30-40 line का code है. It's a very short thing, but this is something, if you ask, actually I really this is something that many people don't know about, because we use CLIs every day. हम लोग इतना file extension, अब you can add a file extension. If you write count_cli.py, then it becomes the name of your program. So if you when you will copy count_cli.py to user bin, and जब तुम ग्लोबली रन करोगे ना, then you need to write count_cli.py space -cmd space ssh या whatever name you want to give it. तो nothing, no extension, because ये होता है ना कि जो तुम फाइल का नाम दोगे ना, that becomes the name of the program. तो Python 3, when you write Python 3 space mycode.py, तो Python 3 is the name of the file which is present in user/bin. Fine and more. No, it's not necessary. It is not advised to not write the file extension, क्योंकि हमने फाइल में इंटरप्रेटर दे दिया है. So उस फाइल में doesn't matter उसका एक्सटेंशन क्या है. The compiler, the interpreter knows कि मुझे क्या यूज करना है इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए. So this जो भी, अगर तुम एक्सटेंशन, if you put up an extension, it becomes the name of a program. और अगर तुम्हें ग्लोबली रन करना है ना, तो you have to write count_cli.txt space, तो वो फाइल, वो प्रोग्राम का नाम बन जाता है बेसिकली जो फाइल होता है. So file extension is not necessary, and it is advised to not write a file extension because you have already mentioned the name of the interpreter in the file itself. सही. बस ये एक चीज मुझे यही बतानी थी कि दिस अ वेरी बेसिक टूल की 30-40 लाइन के कोड में इट्स एन अमेजिंग फैक्ट कि वी यूज CLIs एवरी डे, और हम इतनी CLIs यूज करते हैं, बट वी शुड नो कि हाउ टू बिल्ड वन, राइट. कि अगर तुम किसी को बोलो कि यू यूज गिट एवरी डे, डू यू नो हाउ टू बिल्ड अ गिट योरसेल्फ, तो दे वोंट नो. most people don't know, but this is a free knowledge that you actually should know, right? कि तुम्हें आना चाहिए in future. For example, if you build a package, something like that,
कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया, you need to know how to build a CLI for it, क्योंकि because this just increases the audience for you, क्योंकि developers don't prefer opening a software because it slows down the computer release, you know. So mostly developers prefer using CLIs and terminal itself. So your software should be able to run all the functions using the command line itself. So this is a really great tool. Hopefully you understood everything. So before I go, just one last thing which I really want to tell you. Hopefully everything really understood. I think most of you guys do. Before we go, just 5 minutes mein we'll just wrap up real soon. So yeah. So yeah, booyah, you have your custom command line interface called Count CLI. The blog will be up in a minute. So actually I originally wrote just a blog for this. तो मुझे था कि यार टेक्सचुअल ब्लॉग नॉट मेनी पीपल रीड, सो आई थॉट ऑफ एक्चुअली टेकिंग अ लाइव सेशन. 20-30 पीपल हैव एक्चुअली केम. मैं तो मतलब 20 ही एक्सपेक्ट करा था, बट वी गॉट नियरली 30, सो काफी सही. सो आई जस्ट अपलोड द ब्लॉग. सारा कोड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है वो, आधे घंटे में हो जाता है. अगर तुम एक बारी अगर तुमने इफ यू हैवंट रियली कोडेड, लाइक मतलब मेरे साथ अगर तुमने कोड नहीं लिखा है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू दैट ट्यूटोरियल. मैं जस्ट 2 मिनट में अपलोड करके आई शेयर द लिंक विद यू. तो वहां पे तुम चेक कर सकते हो. इफ यू हैव एनी स्टिल एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी एनीवे, और आई विल एडवाइज यू टू जॉइन स्लैक. यू नो स्लैक में क्या है कि देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल. मैंने स्लैक आई विल जस्ट पोस्ट now. So post mein I'll upload the slide as well, slide and all the things like Slack and DevBay link. So मैं सारे links share कर दूंगा, and just let other people know यार. जिन लोगों को you think are capable enough, उन लोगों को पता चल जाए इसके बारे में, DevBay के बारे में. So it'll be great if you just share DevBay once with your friends outside IIT Mandi, क्योंकि बाहर के लोगों को पता चलना ज्यादा जरूरी है. That's the main aim, क्योंकि IIT Mandi is a strong programming community. यहाँ पे तो we just share everything on command prompt, और हमारे 1-2 मिनट में डाउट सॉल्व हो जाते हैं. But people outside IIT Mandi don't have that kind of privilege. So that's what we DevBay aims at. मतलब I'm not earning anything. I'm just curious to share my knowledge, and that's why मैं अपने बैचमेट्स को भी encourage कर रहा हूँ. And many of them are actually writing great blogs. तुम devbay.tech पे जाओगे, you'll see great tutorials. वेब स्क्रैपिंग का मैं सोच रहा था करने की, बट दैट ब्लॉग इज अप, तो यू कैन जस्ट रीड अबाउट वेब स्क्रैपिंग. काफी सही चीज है. you will just learn it. So at github.com/devbay the organization is there, and very soon I'll be starting an Angular project. So but I thought of not just giving you a session, but actually starting a project. When I'll start a project, तो मैं सोच रहा था कि I'll take people from first year. Priyam is already there, Pratiksha is already there. तो सिर्फ ब्लॉग्स नहीं है, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पे रिपोजिटरीज बना के द कोड विल बी सबमिटेड बाय यू गाइस, कि you can actually contribute by coding itself, not just by writing blogs. So I'm just really soon starting an Angular project. I'm building a streaming platform for DevBay. I'll discuss more about it. The plans are to build a streaming platform, not just free blogs, to make DevBay big. You know, I'm aiming to build a Angular. It will be Angular based project. So you'll learn mean stack, how to be a full stack engineer, front end, back end, everything will be there on that project, or it's a great learning opportunity. तो अगर तुम लोग join करोगे, so I'll be grateful कि first year ites, second year ites, third year ites even join करें, और you'll learn. मतलब प्रियम का मोस्ट मोटिवेशन यही था कि जो वो सीख रहा था ना, he was building a app of his own. तो वो जो चीजें डेवबे पे implement कर रहा था, he was directly implementing those features in his app as well. Pratiksha भी अपना blog बना रही थी, she contributed to DevBay, और same thing उसने सीख के अपने में भी implement की. So this is a great learning thing. So thank you very much. The session was great. I had a great interaction. So thank you. I'll post all the links real soon. And okay, bye bye. Yeah.
Thank you.